Hi kids, how are you? Having fun? Okay, so this video today is about the square and square roots. Okay, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, we talk about square and square roots. Just like and subscribe my channel, which is School Comes Home. Also press the bell icon so that you get any notification whenever I upload any such videos in future. Okay, so don't miss out to subscribe to my channel and also like and press the bell icon. Okay, so what is a square and square roots, we'll learn about it today. Okay, these are very simple things further to what we have already talked about around the rational numbers and the exponents. Okay, तो अगर कंपेयर करें तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है. ओके, तो स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में. तो अगर आपने स्क्वायर समझ लिया तो स्क्वायर रूट्स इज़ वेरी इजी. ओके, तो स्क्वायर क्या है? ओके, सो बेसिकली व्हाट डू वी कॉल स्क्वायर एज? इफ वी हैव अ नंबर ए and we multiply it with the same number a, it becomes square. And how do we represent it? We represent it with the power 2. So a के ऊपर हमने क्या करा, एक पावर लगाई and that power is 2. So someone says a square, which means a is multiplied by a. Okay, and the power is 2. तो let's say अगर हम बोलते हैं 4 into 4, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 की पावर 2. ओके, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है? 16. सिमिलरली इफ समवन सेज 8 into 8, विच मीन्स नथिंग बट 8 स्क्वायर, विच इज 64. ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या हुआ? आपने सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड वॉट एवर यू गेट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, तो अगर समवन सेज यू ओके फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 into 13, विच इज 169. ओके, सिमिलरली ये तो हमने बात करी, यहां पर हमने देखा ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर नेचुरल नंबर्स. ओके, व्हाट इफ समवन सेज यू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर. ओके, सो रेशनल नंबर के केस में इफ यू विल टॉक, सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर? वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एज p डिवाइडेड बाय q. सो लेट्स से you have a number 3 divided by 4, you need to find square of it. ओके, तो क्या करना है, ऊपर वाले डिविडेंड को आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे डिविजर को आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना. Whatever you get is 9 by 16 is the square of 3 by 4. Okay, so and let's take another example. If you have a number minus 3 by 2 and you need to find the square of it. Okay, तो ये क्या बन जाएगा आपका? -3 multiplied by -3, 2 into 2, which comes to 9 डिवाइड बाई 4. ओके, तो यहां पर एक चीज आपने नोटिस करी है, वो क्या है? आपका नंबर वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, इन द केस ऑफ रेशनल नंबर और एनी नेचुरल नंबर, योर स्क्वायर ऑफ दैट नंबर वुड ऑलवेज बी ए पॉजिटिव. सो योर ओरिजिनल नंबर कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, पर उसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. Right, because you are multiplying a negative number with another negative number, it will be a positive number always. ठीक है, so this is how you get a square of a rational number. अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं, which is perfect square. Okay, so what are those numbers? तो those numbers are basically, let's talk about it with example. So let's say what is 1? 1 is 1 multiplied 1 by 1, which is 1 की power 2. Right? Let's say 4. What is that? 2 multiplied by 2, which is 2 की power
2 और 2 का स्क्वायर. Then let's say 16, which is nothing but 4 multiplied by 4, which is 4 का square or 4 की power 2. So these numbers, okay, which numbers? These numbers 1, 4, 16, okay, these numbers are called perfect squares. So 1, 4, 16 are perfect squares. Why? Because they are square of some number which are multiplied with the same number. So they are square of 1, 2 and 4. Okay, so these are perfect square numbers. And if I tell you, what about 2, 3, 5, 6? Those are not perfect square. Why? Because you cannot have a number multiplied by the same number which will result into 2. You will have a nearest number but not an exact number. So 1, 4, 16. Okay, these are perfect squares. Okay, but 2, 3, 5, 6, these are not perfect squares. Okay, so a number is called a perfect square if it is the square of a number. If it is the square of a number. So 4 is a square of number 2, 16 is a square of number 4. Similarly, 9 is square of number 3. तो 9 is also perfect square. ठीक है, so these are perfect square. अब हम बात करेंगे properties of the square के बारे में. But before that, let me show you some squares of 1 to 20 first, because all these properties you will be then able to understand clearly. Okay, so on my page you can see 1 का square. Okay, so 1 का square 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 square 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100. Similarly 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 125, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400. अब जो प्रॉपर्टीज के बात करेंगे उनमें से दोज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू दीज, सम ऑफ दीज. सो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आपने इस टेबल में से कुछ ऑब्जर्व किया है. सो दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 1. ओके, प्रॉपर्टी 1. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी 1? अब अगर आपने चेक किया हो जो आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, विच आर दीज 1, 4, 9, 16, here, what are you observing one pattern? What is that? That the numbers in which one's number is 1, 4, 9, 6, 5. Okay, and then again these are repeating 6, 9, 4, 1 and 0. Here 1, 4, 9, 6, 5 and then 6, 9, 4, 1, 0. So the property is, if the number at the unit place, okay, so check the number at the unit place. So any square number will have number which is 1, okay, not 0, 1, then 4, 5, 6 or 9. Okay, so 1, 4, 5, 6 or 9, right? So 1, 4, 5, 6 or 9 at unit place. So square number will have these numbers at the unit place. Okay, or what we can say, a number having 2, 3, 7 or 8 at the unit place. Okay, if at the unit place you have these numbers 2, 3, 7 or 8, those are not square. तो अगर किसी नंबर में someone says you whether let me tell you, okay, 122, is it a perfect square or not? You can simply say unit place पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, so not square. देखना ही नहीं, आगे करके कुछ भी नहीं देखना, यूनिट प्लेस का नंबर ऑब्जर्व करना आपने, सिंपल. सो दिस इज प्रॉपर्टी 1. व्हाट इज द प्रॉपर्टी 2?
ओके, सो प्रॉपर्टी 2। अब फिर से इसी टेबल को हम चेक करते हैं। तो आपने क्या देखा है, 1 and 9 के केस में आपका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 1 and 9 के केस में आपका यूनिट नंबर जो आता है स्क्वायर का वो कितना आ रहा है, 1, राइट। एंड what you will see, 1 plus 9 is equals to 10 also, right? Similarly 2, okay, and 8 के केस में क्या आ रहा है, you will notice 2 and 8 के केस में, right, it is 4, and what you will observe, 2 and 8 is also 10. Similarly 3 and 7 के केस में, not 3 and 3 and 7 के केस में what you are getting, see 3 and 7 के केस में you are getting 9, and what relationship you observed, 3 and 7 is also 10. Similarly see 4 and 6, 4 and 6 के केस में you will have a unit digit in the square number as 6, right, and you will see, observe 4 and 6 is 10, तो 1 and 9 का सेम आएगा 1, 2 and 8 का आ गया 4, 3 and 7 का आ गया 9, 4 and 6 का आ गया 6, 5 का 5 and 1 0 का 0, right? So this is our property 2. Okay, what is the property 3? So now let's talk about the property which is property 3. Okay, so property 3, what it says is, if you have 0 numbers, if any number, given any number, if it has odd 0 at the end, is not a square number. Okay, let's have an example. So 1 0 10, is it a square number? No, it's not. What about 100? So even number, it is a square number. What about 1000? It is having 3 odd, so it's not a perfect square. So this is property 3. So if someone says you, what about 110, will it be a perfect square? No, it will not, right? So it will not be a perfect square, right? So which has an odd number of the zeros at the end is never a perfect square. ठीक है? So similarly, if someone says you, what about, is it a perfect square? No. So आपने क्या करना है, एंड में जीरो काउंट करना है, 1 2 3 which are odd, so it's not a perfect square. Simple. So this is property 3. Next let's talk about the property 4. So what is property 4? Again, अगर आपने ये पीछे वाली टेबल चेक की है, so again what is that? So if you will see, आप देखिए 1 is odd number, 3 is odd, so 1 का स्क्वायर odd, 3 which is odd, square is odd, 5 25 7 49 9 81. odd number का स्क्वायर is always odd. इवन के केस में 2 4 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100. सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 11 12 13. So what it says, property 4 is all about square of odd number is odd, and even का क्या हो जाएगा, square of even number is even. So this is your property 4. Okay, now number 5. So what is number 5 property? Property number 5 says the property 5 says, अगर आपके ओरिजिनल नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इज n, ओके, सो यू आर हैविंग n नंबर ऑफ डिजिट in a number, then its square will have either 2n number of digits or 2n minus 1.
कैसे? सो व्हाट यू विल सी, 3 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें कितनी डिजिट है 1, एंड 3 का स्क्वायर इज 9, इसमें कितनी डिजिट है 1, 9, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर, 9 का स्क्वायर इज 81, so it will have either 2n or 2n minus 1. So in this case it is 2 into 1 minus 1 which is equal to 1, and here it is simply 2n, 2 into number of digit is 1, so 2, right? So similarly आप 11 के केस में देखेंगे और 9 के बाद में 2 डिजिट नंबर आ जाता है 10, 10 का आपका स्क्वायर 100, इसका कितना हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर 100, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2n, राइट? 19 के केस में अगर हम बात करें तो 19 के केस में इट्स अगेन 361, सो 2n minus 1, ठीक है? सो दिस इज प्रॉपर्टी 5. प्रॉपर्टी 6, ओके, सो प्रॉपर्टी 6 इज so addition of the consecutive odd numbers. Okay, so just see 1 plus 3, okay, so 1 is equals to 1 plus 3 is equals to 4. अब यहाँ पर आप एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न नजर आएगा आपको. ओके, देखिए 1 plus 3 plus 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम ऐड करते जा रहे हैं. so, ये कितना हो गया, दिस कम्स टू योर 9 विच इज 3 का स्क्वायर. 1 plus 3 plus 5, what is the next odd number, 7, right? This is 16 which is 4 का स्क्वायर. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 which is 25 which is 5 का स्क्वायर, right? So यहाँ पर आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप देखेंगे ऐड करते जाएंगे, सो यू विल गेट एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब वो स्क्वायर नंबर किसका है उसका भी एक पैटर्न अगर आप देखेंगे, इसमें आपने कितने ऑड नंबर ऐड करे, 2, 1 के अंदर ओनली 1, नेक्स्ट वाले में कितने हैं 1 and 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया. इसमें कितने ऑड नंबर्स ऐड करें कंसेक्यूटिव, 1 3 and 5, 1 2 and 3, 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर. सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी सेज, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, square of a number n, कितना होता है इसका स्क्वायर, n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, तो अगर कोई आपको बोले 4 का स्क्वायर निकालना तो आप 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर दीजिए, सिंपल, 4 का स्क्वायर 16, राइट? तो ये एक बहुत ही सुंदर सा आपने इसमें पैटर्न देखा है, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट विच इज प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 7, व्हेन what it says is, okay, so when any two consecutive numbers are squared, the number of numbers between these squares will be twice the lower number. क्या मतलब हुआ इसका? So what it says, when two consecutive numbers, let's say n and n plus 1 are squared, तो इनका स्क्वायर कितना हो गया n स्क्वायर, और इसका आ गया कितना, इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने नंबर होंगे, उनका काउंट क्या होगा, उनका काउंट होगा ट्वाइस द काउंट ऑफ लोअर, ट्वाइस द लोअर नंबर, सो 2n. सो लेट्स टॉक, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं. सो लेट्स से योर n इज 3, n प्लस 1 क्या हो गया आपका 4, तो 3 and 4 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और इसका कितना आ गया आपका 16. इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर हुए ये, 1 2 3 4 5 6, राइट? सो 6 नंबर्स. ये 6 कहाँ से क्या हुआ, 2 इंटू लोअर नंबर कितना था आपका 3. अब किसी और नंबर के से बात करते हैं, 4 and 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25. इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे आपके,
इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, काउंट करिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. हाउ मैनी? 8. वो कितना है? 2 इंटू लोअर नंबर 4. सो दिस इज प्रॉपर्टी 7 विच सेज टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप स्क्वायर करते हैं, उनके बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने होंगे? ट्वाइस द लोअर नंबर. ओके, सो this is property 7. Okay, and next is property 8. What is property 8? Property 8 is Pythagorean triplets. Okay, so what is Pythagorean triplet? Pythagorean triplet is if the sum of two smaller number is equal to the square of a third number. Okay, so what it says, there are numbers which might be, you can say a square plus b square is equals to c square. In this case, these a and b are less than c individually, not sum. Okay, a and b are less than c. Then if there is a relationship like this, a square plus b square is equals to c square, then these numbers are called Pythagorean triplet. Okay, so Pythagorean triplets. Okay, so एग्जाम्पल के तौर पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. वाई? बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 विच कम्स टू बी 25 विच इज 5 का स्क्वायर. ओके, सो एक इसके अंदर पैटर्न अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द पैटर्न? सो द पैटर्न इज if there are two numbers, okay, so if there is a positive integer m which is greater than 1, तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं उन नंबर्स का? सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव इंटीजर m which is greater than 1, आपने क्या करना है, जो नंबर निकलेंगे आपके वो निकलेंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 and m square plus 1. So these are your Pythagorean triplet. Okay, so these are your Pythagorean triplet. So अगर आपके पास में कोई नंबर m is greater than 1, तो आपका जो Pythagorean triplet निकलेगा वो इस तरीके से you can find out. Okay, and how you can find out? So let's say if someone says you, आपके पास में m is equals to 7 है, तो आपने क्या करना है, आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 2m, इस केस में आपके पास में कितना आ गया? 14. m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 7 7 जा 49 माइनस 1 48. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? m स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज 7 7 जा 49 प्लस 1 50. अब इसको चेक कर लेते हैं. ओके, सो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कितना आता है? इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर है या नहीं वो भी हम देख लेंगे. ठीक है, सो 14 का स्क्वायर हमने देखा था कितना था? 196 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होगा? ये दिस इज 2304 एंड 50 का वी नो इट्स 2500. तो अब इसको सम करके देखते हैं. 9 6 जा 4, 9 and 6 and 4 0, 525. राइट, सो दिस इज, और इसको आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं. राइट, सो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया? m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर. सो इसको हम एक्सपेंड करते हैं. m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m स्क्वायर, तो विच बिकम्स m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 विच इज नथिंग बट m स्क्वायर प्लस 1 का square, which is equals to, right? So this is how you can prove it. So this is your property number 8. Now let's talk about the property number 9. Okay, so what is property number 9? Another pattern which you can see. So पहले हमने क्या करा था? odd numbers को एक property के अंदर ऐड किया था and we saw that
उसके अंदर अब हम बात करते हैं आगे। अब हम प्रॉपर ओड नंबर की नहीं बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द इक्वल नंबर्स, ओके, नॉट इक्वल, कंसेक्यूटिव नंबर्स। 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब देखिए आप यहाँ पे 1 = 1 1 + 2 = 3 1 + 2 + 3 = 6 10 and 15, okay, and what you will notice that these are the triangular numbers. why? एक ट्राइंगुलर के शेप में आप यू कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर। सो 1 को यू कैन रिप्रेजेंट 1 एज 1 नंबर, 3 यू कैन रिप्रेजेंट एज दिस 3 1 2 and 3, 6 यू कैन रिप्रेजेंट एज, उसके आगे आप 3 डॉट नीचे लगा दीजिए 6, 10 you can represent as, add another 4 to it, 5 you can add another 5 dots to it, so these are called। और इसके अंदर यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड टर्म नंबर। सो इसकी टर्म कितनी हो गई, टर्म 1, दिस इज टर्म 2, कितने नंबर ऐड कर रहे हैं वो आप बेसिकली, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। सो दीज आर द ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। सो अगर आपने nth term of the series of triangular number is given by n into n plus 1 divided by 2, what does that mean? ओके, सो अगर आपने एक सीरीज निकाली है, वहां पर आपने सीरीज ऑफ ट्राइंगुलर नंबर अगर निकाला है, उसका टर्म निकालना है, ओके। सो यहाँ पर 1 3 6 10 15, दिस व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सीरीज of triangular number, ओके। तो आपने nth टर्म अगर उस सीरीज में निकालनी है, सो इफ समवन सेज व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो उसमें वो क्या हो जाएगा आपका n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 इज nth टर्म ऑफ ट्राइंगुलर नंबर सीरीज, ठीक है। तो अब जैसे इसको देखिए आप, फोर्थ वाले के केस में हम देखते हैं, राइट। सो 4 n इज 4, n + 1 कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 10। सो nth टर्म ऑफ सीरीज क्या होगी आपकी 10 हो गई। इसकी अगर आपने 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करा n नंबर्स को, तो क्या आ गया आपके पास में टोटल 10 आएगा, राइट। सिमिलरली 5 के केस में अगर आप करेंगे, 5 × 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया ये 15। सो दिस गोज ऑन। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9, okay। now next property, so next property says n square, given n is a number, okay, it would be 2n - 1 का स्क्वायर minus n - 2 का स्क्वायर plus 2, okay। so this relationship is for any non नेगेटिव इंटीजर n, ओके। तो लेट्स से यहाँ पर आपने n ले लिया, सो लेट्स से n इज लेट्स से 3 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो 2 × 3 - 1 2 का स्क्वायर -3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके। और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -1 + 2 कितना आ गया 9। सिमिलरली किसी भी और नंबर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज n स्क्वायर वुड बी ट्वाइस ऑफ n - 1 का स्क्वायर माइनस n - 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11, ओके। सो व्हाट दैट प्रॉपर्टी सेज, n स्क्वायर अगेन इज ट्वाइस 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक करना है आपने n - 1 तक, जो भी टर्म आ रही है उसको ऐड करेंगे,
उसको ऐसे ट्वाइस कर देंगे प्लस उसमें n ऐड कर देंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका n का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से n इज 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n माइनस 1 तक प्लस n इज 5। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 की टर्म हमने देखी थी, कितनी आ रही है 10 आ रही है, राइट। उसको आप कैसे निकाल सकते हो n माइनस 1 तक, n माइनस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2, तो आपका ये आ गया 4, ठीक है। सो 4 का अगर आपने निकालना है 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 10, तो ये हो गया 10। सो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5, तो 25 विच इज 5 का स्क्वायर। सो फॉर एनी अदर नंबर दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 11। नेक्स्ट property number 12. Okay, so what is property number 12? So property number 12 says n square is equals to n minus 1 into n plus 1 plus 1. Okay, why? So we know that n minus 1 multiplied by n is equals to 1 is equals to what? n square minus 1। ओके, इसको जब आप एक्सपेंड सोल्व कर लेंगे n स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, तो दिस विल बी n स्क्वायर, ठीक है। सो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 और उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर्स। ओके, अब एक स्पेशल केस लेते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी नंबर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिसमें यूनिट प्लेस इज 5, सो लेट्स से हाइपोथेटिकली एग्जांपल इज 35। ओके, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, हाउ यू विल डू इट? 35 इंटू 35, राइट। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगे। इफ यू आस्क मी what I will do, I will simply say it is 1225। कैसे? ठीक है, तो अभी आप इसको एक्सपेंड करके देखिए पहले, 35 इंटू 35, राइट। दिस इज हाउ यू विल डू इट। टू सॉरी, नॉट 175, इट इज 1 and 225। अभी इसको आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस को आपने मल्टीप्लाई, जब मैं करूँगा, मैं क्या करता हूँ, 35 को जब आपने 35 से मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आया उसको 25 लिख दीजिए, ठीक है। जब वंस वाले नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 में आपने एक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 4, तो 3 इंटू 4 कर दीजिए और उसको यहाँ लिख दीजिए। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। सो दैट सेज समवन आस्क यू 45 इंटू 45। आपने क्या करना है, 45 इंटू 45, तो 1 एंड 1 पे क्या आया 5 है, तो उसका तो आपने क्या कर देंगे, उसको इज इक्वल्स टू 25। 1 के प्लेस पे, 1 के प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 को आप नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है 5 4 जा 20। सो दिस इज 45 का स्क्वायर। सिमिलरली 65, तो क्या हो जाएगा 25 एंड 6 7 जा 42। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की, ठीक है। तो स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर इज 9। ओके, सो 9 इज नथिंग बट 3 इंटू 3, ठीक है। तो
9 का स्क्वायर रूट, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट? वी रिप्रेजेंट इट, सो स्क्वायर रूट वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट सिंबल। कितना हो गया? 3। तो स्क्वायर रूट इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग द नंबर बाय विच if you multiply that number with the same number you will get your original number. So it is the reverse of finding the square. So in the case of square you multiply the same number with the another same number, you get another number. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक नंबर मिला है, उसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेसिकली किस नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको ओरिजिनल वाला नंबर मिल जाए। तो 9 के केस में 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल डू इट। सो 121 का स्क्वायर रूट 11। ओके, सो अब इसको निकालने के तरीके के बारे में बात करते हैं। बट स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझ में आ गया आपका। स्क्वायर रूट के केस में नाउ इट कुड हैव, जब आप निकाल रहे हैं 11 तो 11 कुड बी +11 और -11, क्योंकि हमने क्या देखा था, स्क्वायर जब हम कर रहे हैं किसी नंबर को तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है। सो इट कुड बी +11 और -11, बोथ द आंसर्स आर राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के तरीके से, ठीक है। सो लेट्स से आपने स्क्वायर रूट निकालना है 144 का, ठीक है। तो वैसे अगर हमें टेबल याद है या हमने अभी तक 20 तक के जो एग्जांपल देखे, वी नो द आंसर इज 12, बट अगर इसको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सो फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट इज दैट? प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। उसमें आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके? 144 के। सो 144 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं? सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सो दिस इज, सो अब उसमें आपने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें 2-2 के पेयर बना लो आप, ठीक है। तो ये कितना आ गया, जब आपने 2-2 का पेयर बना लिया तो ये 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का एक पेयर, 3 इंटू 3 का एक पेयर, उसको आप अब पेयर में जब आ गया तो उसको सिंगल लिख लो अब, ठीक है। तो ये वाला 2 बन गया ये वाला 2 इज दिस एंड दिस 3 इज फ्रॉम हियर। और अब जब आपने सिंगल सिंगल लिख लिया तो आपने स्क्वायर रूट का सिंबल हटा दिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 2 इंटू 2 और 2 इंटू 6 विच इज 12, ठीक है। Similarly, if someone says you prime factor of 1764, ठीक है, उसको कैसे करोगे? तो 1764 के प्राइम फैक्टर निकालो। सो बेसिकली अब आप यहाँ से 2 से स्टार्ट किए, 8, ओके, 8 8 2, राइट, देन 2 4 4 1, करेक्ट, एंड देन दिस इज 3। सो 3 से करेंगे 1 4 7, राइट, 147, देन 147 में अगेन 3 का जाएगा, राइट। सो दिस इज 4 9, करेक्ट, एंड देन 7 7 7 1। सो क्या बन गया आपके पेयर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2 इंटू 3 इंटू 7 42, राइट। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। सो दिस इज हाउ you can identify, this is called identifying square roots by prime factorization, okay। Next, number of digits in the square root of a square number। तो हमने स्क्वायर के केस में देखा था, अगर हमारे नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज n, स्क्वायर रूट, स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स वुड बी आइदर 2n और 2n माइनस 1। यहाँ पे आपने क्या करना है, if the number of digits in, कोई आपने डिजिट दे दी, कोई आपको डिजिट दी गई है, लेट्स से आपने को दे दी 4 5 6 8 6, ओके। इसमें आपने क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाइए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो
1 2 एंड 3। तो आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जो स्क्वायर रूट में आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 3। 1, एक दो दो के पेयर बनाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो लास्ट में अगर जीरो एक ही है तो उसको एक को भी आप पेयर मानेंगे। तो ये कितना हो गया? 1 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर स्क्वायर रूट वुड बी 3। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो मेथड 2। तो मेथड 2 हमने एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी स्क्वायर के केस में, अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं तो स्क्वायर मिलता है। देखा था ना हमने, जहाँ पर हमने 1 + 3 = 4 = 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर, राइट। 1 + 3 + 5 = 9 = 3 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी अगर नंबर आपको दे दिया, लेट्स से हमने आपको नंबर दे दिया 49, तो अब इसमें से आप कंसेक्यूटिव नंबर्स माइनस करते जाइए ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 49 - 1 यू गेट 48, राइट। देन 48 माइनस व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर? 3, you get 45. Then 45 minus 5, what you get? You get 40, right? Similarly, in from the 40 what you get? You can say 40 में से what is the next negative? 47, so this you get 33, right? Then 33 minus 9 you get 24. 24 minus 11 you get how much? 13, and 13 minus 13, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कितने हुए काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज 49 का स्क्वायर रूट इज 7। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन मेथड, बट जहाँ पर बहुत ही लंबे डिजिट्स होंगे वहाँ पर दिस इज नॉट यूजफुल। दिस इज ओनली यूजफुल वेर यू हैव लिमिट वेरी स्मॉल डिजिट ऑफ नंबर्स, राइट। क्योंकि अगर ये तो 49 मैंने 2 डिजिट का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, व्हाट इफ यू हैव वेरी बिग नंबर्स, ठीक है, 3-4 डिजिट्स के, तो वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं है। वहाँ पर आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, या फिर एक नया मेथड जो कि डिवीजन मेथड है, विच विल टॉक अबाउट। सो दैट इज आवर मेथड 3। So method 3 is division. Okay, so division method. So यहाँ पर आपने क्या करना है? Okay, so let me give you, if you want to identify 225 का स्क्वायर रूट। ओके, सो आपने क्या करना है, टुवर्ड्स अगेन राइट टू लेफ्ट 2 2 के पेयर बना लो। ओके, सो दिस इज 2। सो 2 का अगर आप देखेंगे, 2 इज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग? नो, बट नियरेस्ट नंबर जो है 2 से जिसका कि स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 होता है वो होता है 1। सो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 × 1 इज 1, राइट। 2 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब जो 2 का जो हमने पेयर बनाया था उसको आपने ले आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या करा, 1 + 1 इज 2, इसको 2 ऐड कर देंगे। अब 2 के अंदर हिट एंड ट्रायल जब आपने ये देखना है, 2 में आप कौन से नंबर ऐड करें यहाँ पर, जिसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर शुड बी 125। सो अगर आप लेट्स से 2 के आगे 4 लगाते हैं, सो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 24 × 96, बट हिट एंड ट्रायल हम क्या जानते हैं, 25 को अगर हम 5 से ऐड करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 125 आता है। तो 5 आपने यहाँ पर ऐड कर देना, ऊपर लगा देना है। दिस इज योर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 और 225 इज इक्वल्स टू 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो let's take one example. Okay, so let's take the example. You need to find the
स्क्वायर रूट ऑफ 27, 45, 76, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो दो दो के पेयर बना लो आप, 1, 2 and 3, तो 27, 45, 76, ये दो दो के पेयर बना लिया आपने। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 27। तो 27 में आपको पता है 5 5 या 25 इज द नियरेस्ट नंबर, सो 5 यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 10, राइट। और ये कितना हो गया, बच गया 2, 45। अब आप नीचे ले आएंगे 45 में। अब अगर आप यहाँ पर 3 कर देते हैं तो वो 300 हो जाएगा, तो नियरेस्ट नंबर 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा 204। इसको जब आपने करा ये आ गया 4176, राइट। तो ये आ गया 4176। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने 102 में 2 ऐड कर देना, तो ये कितना हो गया 104। अब हम क्या करेंगे, 104 में अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें वापस से, तो कितना आ जाता है 6, 7 और ये 4 यहाँ पर, सॉरी 2 यहाँ था एंड 4, सो दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 524। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सो दिस इज नो डिफरेंट देन व्हाट वी हैव डन। सो स्क्वायर, जब हमने a डिवाइड बाय b का स्क्वायर किया तो हमने क्या किया, a इंटू ए डिवाइडेड बाई b इंटू बी। तो सिमिलरली जब आपने स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से p एंड q, तो दैट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ p, स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ q। So if someone says you give me square root of 64 divided by 144, तो 64 का स्क्वायर रूट एंड 144 का स्क्वायर रूट, which is nothing but 8 divided by 12, okay, and then further simple कर दो तो 2 divided by 3, so this is the square root। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो अभी तक तो हमने क्या करा, जो परफेक्ट स्क्वायर थे या ठीक है, अब डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो डेसिमल नंबर में आपने क्या करना है, आपके पास में लेट्स से यू हैव अ नंबर 3180.96, इसका अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल, इस केस में भी आप क्या करोगे, जो डेसिमल है आपका, ठीक है, उससे तो चलोगे आप, जो होल नंबर है उस केस में तो आप चलोगे राइट टू लेफ्ट, तो दो दो के पेयर इस तरीके से जैसे अभी तक बनाए हैं हमने। और डेसिमल के बाद में आप चलोगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पेयर, ये दो। अब 31 का पेयर हम जानते हैं 5, इससे बड़ा हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 6 या 36 तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो 25 5 5 जा, सो यहाँ पर 5 लगा दिया, ये 10 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, ये 80, राइट। इस केस में अब हम कितना कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 6 से, राइट। सो 106 को अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 636, यहाँ पर 6 आ गया, ये हो गया हमारा 112, और यहाँ पर कितना आ गया 44, राइट। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है, नेक्स्ट पेयर कितना है 96, बट उसके पीछे हमारे एक डेसिमल आ गया, तो डेसिमल की वैल्यू आप यहाँ ऊपर लगा देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। और यहाँ पे अब आप ले आए 96। ठीक है, सो 112। अब यहाँ पर हम क्या करें कि वो 96 आ जाए, तो बेसिकली जो नियरेस्ट नंबर मुझे नज़र आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, क्योंकि 5 करते ही तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपने डेसिमल नहीं लगाना क्योंकि डेसिमल आपने ऊपर लगा दिया, तो 4 से हम करते हैं 9 4 4, ये हो गया कंप्लीट 0। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा
56.4। ठीक है, सो ये तो हो गया डेसिमल के केस में। अब इसमें भी आपने एक पैटर्न क्या देखा, आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। ठीक है, और परफेक्ट नंबर निकल गया। अब अगर आपका स्क्वायर रूट ऐसा नंबर निकालना जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। सो लेट्स से यू हैव 71 एग्जाम्पल 7896.0000। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, जो अभी हमने अभी तक बताया, तो आपने क्या करना है, डेसिमल के पहले वाले इस तरीके से बनाने और उसके बाद वाले इस तरीके से बनाने, इसका लगाते हैं। सो वी नो दैट कितना 8। ठीक है, सो 8 8 जा 64, यहाँ पर 64, ये कितना आ गया 14 आ गया, राइट, एंड यहाँ पर 8 आ गया, ये 16 आ गया, 8 and 8 यहाँ पे ले आए आप 96। हम नेक्स्ट नीचे 96 ले आए, ये प्रोबेबली कहाँ जा कर के बैठेगा, ये बैठेगा समवेयर अराउंड 8। सो 8 को जब इससे करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 64 6 1344, राइट, और ये ऊपर आ गया 8, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 251। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है आपने, ये डेसिमल तो ऊपर लगा दिया क्योंकि यहाँ से ले आए, और उसके बाद में 2 जीरो नीचे ले आने हैं। जब 2 जीरो आप नीचे ले आएंगे, यहाँ पर कितना हो गया 88671। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो ये 176, अब ये फिर से प्रोबेबली इट विल गो टिल 8। ठीक है, और जब ये जाएगा 8 में तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा, ठीक है, और ये यहाँ पे फिर से आ गया आपका 8, और यहाँ पर कितना नंबर बचेगा अब आपका 6, सॉरी, हाँ 6 5 0 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, और फिर ये अब आप 2 जीरो और ले आए ऊपर से। ठीक है, जब ये 2 जीरो अब आप ले आएंगे, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से वही कैलकुलेशन हमारी चलेगी, और उस कैलकुलेशन में अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबली हमारा जो नंबर जाएगा वो 5 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे 5 का 3, ठीक है, और ये बन गया मेरा 0 7 7 7 1 1770, और यहाँ पर ये मेरा आंसर इसमें आ जाएगा 5 9 से 7 7 6, राइट, ये आ गया। अब आपने आप फर्दर निकालना है इसको, तो फर्दर आप 0 0 ऐड करते जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और ऊपर निकालते जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब हम एक और तरीके की बात करेंगे विच इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। ठीक है, तो वो एस्टिमेशन जो है वो कई बार जब हमारे को क्विकली कोई बड़ा सॉल्यूशन यूज करना है, वेयर इन वी जस्ट नीड टू हैव एन इंडिकेशन, वहां पर हाउ डू वी डू दैट। सो लेट्स से हमने एक स्क्वायर रूट निकालना है क्लोजेस्ट टू द होल नंबर, लेट्स से एस्टिमेशन। सो दिस इज एस्टिमेशन। ठीक है, तो अगर अब आपने एस्टिमेशन निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 251 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें क्या पता है स्क्वायर रूट में
251 जो आता है हमारा वो किस किस के बीच में आता है? ये 100 एंड 400 के बीच में आता है। 100 कितना है? 10 और ये 400 इज 20 का। तो ये स्क्वायर रूट हमारा 10 और 20 के बीच में है। फर्दर हमारे को ये पता है 10 और 20 अभी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर रूट कितना? 15 का स्क्वायर कितना होता है? सो 15 का स्क्वायर हमारे को पता है 225 होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हमें फर्दर ये ड्रिल हो गया कि ये जो है 15 एंड 20 के बीच में है। ठीक है, क्यों कि 25 एंड 400 के बीच, 225 और 400 के बीच में, तो 15 और 20 के बीच में है, राइट। उसके बाद में अब हमने 16 का स्क्वायर देखना है। सो 16 का स्क्वायर इज कितना? 256। तो 256 इज क्लोजर टू 251। तो स्क्वायर रूट ऑफ 251 इज क्लोजर टू 16। दिस इज द आंसर। तो दिस इज एस्टिमेशन। बेसिकली आप गेस कर रहे हो बेसिस योर नॉलेज। तो क्विकली 251 का अगर आपको आइडिया लगाना है तो 16 का हमें पता 256 है, 251 उसके बराबर में आने की उम्मीद है, राइट। अब उसके बाद में अब एक बात कराते हैं, एक फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग अप टू 4 डिजिट्स यूजिंग एस्टिमेशन। ठीक है, ये 4 डिजिट के केस में ही हमने लगाना है। ठीक है, तो 256 के केस में तो हमारे को पता है ये 16 हो गया। कैसे निकाला हमने? कैसे निकाला? 2 का तो हमने देखा 1, देखो 2 का हमें पता है, वापस से वही पेयर बनाया आपने, तो ये 2 का तो हमें पता है 1, राइट। अब 56, 6 हमारे किस केस में आ रहा था? एक प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी, 6 हमारे आ रहा था 4 एंड 6 के केस में, राइट। तो 1 के बाद में आइदर इट वुड बी 4 और इट वुड बी 6। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256, इट वुड बी आइदर 14 और इट वुड बी आइदर 16। ठीक है, अब हमें 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 225। तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में? सीधा 226। अब सॉरी 256 16 के केस में। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल 4 डिजिट का। ठीक है, जहाँ पर लेट्स से 4 डिजिट के केस में हमने ये पता करना है कि लेट्स से 3136, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही दो पेयर बनाओ आप। 36 का एक पेयर बनाया, 31 का एक पेयर बनाया। ठीक है, तो 31 नियरेस्ट क्या आता है 31 के केस में? सो इस केस में हमारा नियरेस्ट कितना आता है? 5 आ जाता है, राइट। तो ये आ गया मेरा 5। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं 36। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या है? 6 है। तो ये 6 फिर से क्या होगा? आइदर इट वुड बी 4 और इट वुड बी 56। इसके अलावा तो नहीं होगा ना। दिस इज वाई वी टॉक्ड अबाउट दोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब 54 और 56 करना है। अब इस केस में एक और एग्जांपल जो हमने 5 के केस में जो स्क्वायर निकालने का तरीका देखा था, 55 के केस में हमने क्या करा था? 55 का जब स्क्वायर निकाला वो हमने कैसे निकाला था? 5 इंटू 5 25 एंड देन नेक्स्ट 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30, 3025। तो मेरा 3025 इज लेस देन और ग्रेटर देन 3136। तो ये 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो डेफिनेटली 55 से तो बड़ा है। तो इट मीन्स माई आंसर इज 56। ठीक है, और ये एस्टिमेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम तो अब बात करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं हम, कितना आ जाएगा। ठीक है, सो दिस कम्स टू 6 6 36 3 sorry and so this comes to 6 3 1 3 3136, right? So this is how you can use those properties to sometime find your answers very easily. जहाँ पर आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्विकली गेस एस्टिमेशन करना, स्पेशली जहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको पता है जो कि गिवन ऑप्शंस में से एक आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब उसमें दे दिया उन्होंने रूल आउट, लेट्स से 16 के केस में 256 का उन्होंने बोला 256,
स्क्वायर रूट निकालो। आंसर दे दिया 12, 13, 14, 16। ठीक है, 12 एंड 13 आपने वहीं पर रूल आउट कर देना है। 14 एंड 16 में यू यूज दिस कि अच्छा 15 का कितना होता है 225, उससे ज़्यादा है तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली 3136 का दे दिया एंड दे गिव यू फ्यू आंसर्स, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सब करने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली गेस द आंसर, राइट। एंड दिस इज वेयर you need to do the practice about all the questions which are given into your textbook. ठीक है, so this completes the square and square roots also. I hope you are able to understand, okay, and it was easy to understand. What I will now suggest is you complete all the exercises which are given in your textbook. If you have any queries, write them into the comment box and I will try to answer. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लिख दीजिए, मैं जब भी समय मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ दोज। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द like and bell button so that you get the notification whenever I upload new video, okay, for your next chapter, about your next chapter. But today we talked about the square and square roots, which is chapter 3, and I hope you are able to understand. So that's all for today. Have a good day. Bye bye, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.